السلام علیکم دوستو، لائٹ گئی ہوئی ہے اور میرا دل کر رہا ہے مینگو آم کھانے کا، اور میں نیکسٹ ٹائم بنانے جا رہی ہوں۔ پہلے میں نے بنایا ونیلا کیک اور اب میں بنانے جا رہی ہوں سیکنڈ ٹائم پہ مینگو کیک، اور اس کے لیے میں نے یہ اتنا بڑا سا ایک مینگو لیا ہے، بالکل یلو اور میٹھا، اور اسے میں نے کٹ کیا تو یہ اتنا آم نکلا ہے۔ اس کی کوانٹٹی اتنی ہے، میں نے سمجھ لیں 1 کپ آم لیا ہے اور 1 کپ میدا ہے، اور 1 سے 1.5 چٹکی، زیادہ نہیں، صرف 1 سے 1.5 چٹکی بیکنگ پاؤڈر ہے، اور ½ کپ سے بھی کم آئل ہے ہمارا، اور ہے یہ ½ کپ ہے شکر۔ اور اب ہم اسے نہ تو جوسر میں بلینڈ کریں گے اور نہ ہی بیٹر میں کریں گے، ہم اسے ہاتھ سے اس کے اندر بیٹ کریں گے۔ تو چلتے ہیں آپ کیک کے سانچے میں وہ لگا لیتے ہیں، تھوڑی سی سائٹیڈوں میں۔ یہ سب سے پہلے ہم اس میں آئل گریس کر لیں گے۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، بارش ہو چکی ہے اور کیک کھانے کا دل کر رہا ہے، اور سیکنڈ ٹائم کیک بنا رہی ہوں تو تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے مجھے۔ میں نے اس میں آئل گریس کر لیا ہے، اور اب میں نے اس میں بٹر پیپر بچھا لیا۔ اب میں اسے بھی گریس کر لوں گی۔ یہ میں نے 250 روپیز کا سانچہ لیا ہے، آٹومیٹک سانچہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مینگو اس میں اچھی طریقے سے میلٹ کریں گے۔ پہلے میں نے آم کو اچھی طریقے سے اس میں پیس لیا ایک طریقے سے۔ اب میں اس میں شکر ڈال کے، چینی کو ایڈ کر کے، اب میں اسے اچھے طریقے سے بیٹ کروں گی ہاتھ سے۔ تو بارش ہوئی تھی، ہم نے پکوڑے تو بنا کے کھا لیا۔ اب میرا کافی دیر سے دل کر رہا ہے کہ میں کیک بنا لوں مینگو کا، تو لیکن میں نے کہا کیسے بنے گا، بیٹر بھی نہیں چل رہا ہے، جوسر بھی نہیں ہو سکتی، لائٹ ہے ہی نہیں۔ تو پھر تھوڑا سا آئیڈیا کیا، اور بس تھوڑی سی محنت زیادہ لگے گی، لیکن یہ بہت اچھا تھا انشاءاللہ۔ فرسٹ ٹائم میں بنا رہی ہوں مینگو کیک، اور انشاءاللہ بہت اچھا سا بننے والا ہے یہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی اور آم کا جو پلپ تھا وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں آئل ایڈ کر دوں گی۔ تو دوستوں محنت تو لگ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم میں بہت اچھا کیک بیٹ ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ اچھے طریقے سے بیٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ تو فرینڈز میں یہ پچھلے 10 منٹ سے اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں۔ یہ 10 منٹ میں بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو چکا ہے، اور میں نے یہ میدا پہلے ہی اچھے طریقے سے چھان لیا ہے۔ میں آپ کو چھانتے ہوئے نہیں دکھا رہی، آپ چھان لینا اسے۔ اور بیکنگ پاؤڈر 1.5 چٹکی ہے تقریباً۔ اب ہم اسے 1 سائڈ فولڈ کریں گے۔ اب ہم اسے بیٹ بالکل بھی نہیں کریں گے، صرف ہم اس میں میدا اچھے طریقے سے فولڈ کر دیں گے، مکس کر دیں گے۔ 1 سائڈ ہمیں اسے فولڈ کرنا ہے۔ اس والے بیٹر سے مجھ سے اچھی طریقے سے فولڈ نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں یہ ہٹا کر اس والے اسپون سے فولڈ کروں گی۔ ایک ہی سائڈ لیے میں نے فولڈنگ میں۔
हमारा ये केक का जो बैटर है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो चुका है और अब मैं इसे सांचे में डाल देती हूँ। मैंने इसके अंदर सारा बैटर डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से टैप करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेकंड टाइम मैंगो का केक बना रही हूँ और काफ़ी जल्दी में भी हूँ। और जो है मैंने पहले वनीला का केक बनाया था, तो इस वजह से मुझे जो गलतियाँ हुई थी वो मैंने थोड़ी सी अब चेंज करी हैं, क्योंकि बेकिंग में थोड़ा सा मसला हो गया था। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या मसला हुआ था। आप मेरी वनीला केक के नाम से बाय आयत खान फूड सेक्टर सर्च कर लिएगा। और मैंने यही वाला जो है भगोना लिया था, ये देख सकते हैं आप। इसकी हालत मांजने के बाद ऐसी हो चुकी है और मैं एल्युमिनियम के बर्तन पकाने में यूज़ नहीं करती। ये वैसे भी मेरे लिए रफ़ था, तो इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये मेरा भगोना ख़राब हो चुका है। मैंने उसमें ये रखा था, एक ढक्कन छोटा उल्टा करके मैंने ऐसे रख दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे बेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। आज मैं एक छोटी सी टिप लेकर आई हूँ अपनी तरफ से ही, थोड़ा सा जोश आया हुआ है। मैंने ये निकाले हैं नट। अब मैं और क्योंकि मैं लेकर आई हूँ इसका रेक, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि वो गलती से कैसा आ गया। वो भगोनों में भी नहीं आ रहा, मैं वो स्टैंड चेंज करके लेकर आऊँगी। तो अभी मैं वो स्टैंड आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये इस तरीके से इसको बेक करने जा रही हूँ। आप देख लें कि मैंने ये 4 नट रख लिए। अब मैं इसके ऊपर बेक करूँगी तो ये थोड़ा फास्ट बेक होगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसको प्री हीट करके। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने कितना फ्लेम रखा है। ये आपको अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल लो फ्लेम है, लेकिन इसी चारों तरफ से ही लो दे रहा है। मैंने बीच में काफ़ी तेज़ हीट आती है, तो मैंने ये रख लिया है मोटा सा कुछ। और अब मैं ये इसको थोड़ा सा प्री हीट करूँगी भगोने को। ये मैं अपना तजुर्बा कर रही हूँ, आज मैं देखती हूँ कि बेकिंग कैसी होती है। पिछली दफ़ा भी मैंने बहुत कम बैटर में और बहुत कम चीज़ों से केक बनाया था, मतलब सारा सामान मैंने आधा आधा लिया था तजुर्बे की वजह से, लेकिन वो जो है बहुत देर में बना था केक। आज मैं थोड़ा सा अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। अब मैं ये हीट हो चुका है और इतना हीट है कि मैंने अपने हाथ पे बर्दाश्त कर लिया। अब मैंने ये इसको भगोने में रख दिया है। अब हम इसे देखते हैं कितनी देर में बेक कर लेते हैं। और आप इसकी भगोने की ये भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा मोटा नहीं है। और अब मैं इसे एक स्टील के ढक्कन से कवर कर रही हूँ। एक कवर ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको एक और ढक्कन से कवर, ये देखें ये उससे बड़े साइज़ का ढक्कन है स्टील का। अब मैं इसे उल्टा करके और इससे कवर कर दिया। अब इसकी हमारी भाप नहीं निकलेगी। और अब हम टाइम देख लेते हैं और मैं इसे चेक करूँगी 25 मिनट के बाद। तो मैं आपको 25 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जाली लेकर आई थी मैं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये 100 की मैंने ली थी, लेकिन ये चकोर होने की वजह से काफ़ी स्पेस ले रही है, ये काफ़ी बड़े भगोने में भी नहीं आ रही। तो अब मैं इसे चेंज करके गोल लेकर आऊँगी ये स्टैंड। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि मैंने नट रखे हैं, तो इसकी वजह ये है। मैंने इसके ऊपर बट्टा भी रख दिया है ताकि बिल्कुल भी इसकी भाप ना निकले। 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, खोलना पड़ेगा। भाई तजुर्बा तो ऐसे ही होता है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से बेक हो रहा है, तजुर्बा अच्छा चल रहा है। हम इसे छुरी से भी चेक कर लेंगे। अभी हमारा बैटर गीला है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं इसी तरीके से।
मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पहले 25 मिनट तक हमने बेक कर लिया था, अब मैं पूरे 20 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ, मतलब टोटल हमें 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा केक बेक हुआ है। अब हम देखते हैं इसे नाइफ से। अभी थोड़ा सा इस पे बैटर आ गया है। ये मेरे ख्याल से 5 से 8 मिनट और बेक होगा। इस पे थोड़ा सा बैटर आ गया है। हाँ, 5 मिनट के लिए हम इसे और बेक कर लेते हैं। अब प्लस 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने 5 मिनट कहे थे, लेकिन मैंने इसे प्लस 10 मिनट छोड़ा, तो टोटल हमारे 55 मिनट्स हो चुके हैं। और आप कंडीशन देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसे बेक किया है। मैं आपसे बारीकी से खुद ही अपना तजुर्बा शेयर कर रही हूँ कि जो मुझे परेशानियाँ हो रही हैं वो आप लोगों को ना हो और आप लोग भी अच्छी तरीके से बना लें। मैं भी सीख कर ही यूट्यूब से और आपको सिखा रही हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं चेक कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो अब ये पक चुका है अच्छी तरीके से। नहीं, अभी 5 मिनट और मैं बेक करूँगी। फिर आपने देखा कि कितनी परेशानी हो रही है, तजुर्बा अच्छा हो रहा है। हम इसे 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे। टोटल हमारा पूरा 1 घंटा ही हो जाएगा बेकिंग में। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए और रख रही हूँ आपके सामने। लेकिन माशाल्लाह से केक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। 5 मिनट बाद फिर चेक करते हैं हम। तो बाकी के 5 मिनट और गुजर चुके हैं। पूरा 1 घंटा हमने बेक किया है। और आप बाय आयत खान फूड सेक्टर से मेरा वनीला केक भी चेक करना। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने पूरा 1 घंटे बेक किया है। और उसमें मैंने जो ढक्कन उल्टा करके रखा था, और अब मैंने अपना तजुर्बा भी किया। लेकिन पूरा 1 घंटे बेक हो रहा है केक। और अब मैं फिर चेक कर लेती हूँ इसको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वजह से कि अब हो चुका हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। और अब ये बेक हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था केक खाने का, लेकिन इसे पकने में पूरा 1 घंटा लगा है। और लाइट भी गिर चुकी है। 1 मिनट रुके। और ये मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं। नटों के साथ हमने इसे बेक किया है। और सांचा बहुत गर्म है और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं इसे पिलाज से ही खोल रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं केक। अभी मैं इसे निकालती हूँ प्लेट पे। ये बहुत गर्म है। तो आप देख सकते हैं गर्म होने की वजह से मैं सब पिलाज से कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे हाथों में दी। अब मैं इसे आपको चख कर दिखाती हूँ। और मैंने इसका बेटर कम लिया था, इस वजह से ये पतला बना है। लेकिन आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है। माशाल्लाह से जायका भी बहुत अच्छा आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।